4 मिनट का स्पीच और $78 बिलियन यूएस के मार्केट से एक दिन के अंदर गायब। इंडियन मार्केट में से 2.28 lakhs crores disappeared, withdrawn, गायब। कैसे 4 मिनट के स्पीच से ऐसा कैसे संभव है? इस बंदे को ध्यान से देखिए, ये इसका नाम है जेरोम पॉवेल। ये बंदा जो है ही इज़ अ चीफ ऑफ फेडरल रिज़र्व यूनाइटेड स्टेट्स। तो अमेरिका का ये चीफ है बंदा। अब इसने क्या ऐसा कहा, इसने ऐसा क्या कहा कि भाई इतना बड़ा मार्केट में अपहेवल क्रिएट हो गया, इतना बड़ा इतने पैसे गायब हो गए मार्केट से। तो मैं जब आपको पिछले 2-3 वीडियो से जो कहने की कोशिश कर रहा था कि जो रिसेशन आने वाला है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ डीपर, बहुत ही ज़्यादा गहरा रिसेशन होने वाला है। मैंने आपसे ये भी बात की कि कैसे मनी प्रिंट होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू। तो देखिए इस बंदे को कि इन्फ्लेशन आया तो आया कहाँ से? इसी बंदे का क्रिएट किया गया है या फिर सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड उनके थ्रू क्रिएट किया गया है क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू, या फिर बैंक्स को जो आपने अधिकार दिया है लोन देने का, वो भी आउट ऑफ थिन एयर, जो पैसा क्रिएट करके लोन देने का जो अधिकार दिया गया है, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन जो आया है, इतना तगड़ा इन्फ्लेशन जो कि पिछले 10 साल से लगातार 2008 के बाद से लगातार चलते आ रहा है। बेल आउट पहले 2008 में करते हैं और फिर देखिए 12-14 सालों से जो लगातार चलते आ रहा है। और पैंडमिक के समय में तो $3 ट्रिलियन ऐसे ही छाप दिया। हमारे इंडिया ने तो 1,20,000 करोड़ रुपये छाप दिए। हाँ जी साहब जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम के तहत। तो समझने की बात क्या है कि ये बंदा 4 मिनट का स्पीच देता है परसों तरसों फ्राइडे को, और स्टॉक मार्केट धाराशायी, 3% इंडियन मार्केट धाराशायी। वहाँ पे $78 बिलियन गायब, यहाँ पे 2.28 lakhs crore रुपीस गायब, डिसअपियर्ड। पहले आइए समझते हैं इस बात को कि ये बंदा क्या बोल रहा है, और उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इन सब चीज़ों को कि कैसे क्या हुआ एग्जैक्टली। सुनिए इसे। While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. The Open Market Committee's overarching focus right now is to bring inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. The burdens of high inflation fall heaviest on those who are least able to bear them. Restoring price stability will take some time and requires using our tools forcefully to bring demand and supply into better balance. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth. Moreover, there will very likely be some softening of labor market conditions. While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. But a failure to restore price stability would mean far greater pain. The U.S. economy is clearly slowing from the historically high growth rates of 2021, which reflected the reopening of the economy following the pandemic recession. While the latest economic data have been mixed, in my view, our economy continues to show strong underlying momentum. The labor market is particularly strong, but it is clearly out of balance, with demand for workers substantially exceeding the supply of available workers. Inflation is running well above 2%, and high inflation has continued to spread through the economy. While the lower inflation readings for July are certainly welcome, a single month's improvement falls far short of what the committee will need to see before we are confident that inflation is moving down. So, we are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%.
At our most recent meeting in July, the FOMC raised the target range for the federal funds rate to 2.25% to 2.5%, which is in the Summary of Economic Projections range of estimates of where the federal funds rate is projected to settle in the longer run. In current circumstances, with inflation running far above 2% and the labor market extremely tight, estimates of longer run neutral are not a place to pause or stop. July's increase in the target range was the second 75 basis point increase in as many meetings, and I said then that another unusually large increase could be appropriate at our next meeting. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. Our monetary policy deliberations and decisions build on what we've learned about inflation dynamics, both from the high and volatile inflation of the 1970s and 1980s, and from the low and stable inflation of the last quarter century. And in particular, we're drawing on three important lessons that I'll highlight. The first lesson is that central banks can and should take responsibility for delivering low and stable inflation. It may seem strange now that central bankers and others once needed convincing on these two fronts. But as former Chairman Ben Bernanke has shown, both propositions were widely questioned during the Great Inflation period. Today, we regard these questions as settled. Our responsibility to deliver price stability is unconditional. And that brings me to the third lesson, which is that we must keep at it until the job is done. History shows that the employment costs of bringing down inflation are likely to increase with delay, as high inflation becomes more entrenched in wage and price setting. The successful Volcker disinflation of the early 1980s followed multiple failed attempts to lower inflation over the previous 15 years. A lengthy period of very restrictive monetary policy was ultimately needed to stem high inflation and to start the process of getting inflation down to the low and stable levels that were the norm until the spring of last year. Our aim is to avoid that outcome by acting with resolve now. So, these lessons are guiding us as we use our tools to bring inflation down. We are taking forceful and rapid steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply and to keep inflation expectations. तो आपने सुना कि वो बंदा बोल रहा है कि I fully understand and appreciate the pain people are going through dealing with higher inflation. मतलब हायर इन्फ्लेशन के वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम हुई है, प्राइस राइज की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम हुई है, हम समझते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, हमारे पास टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अरे सबसे पहली बात, आपको इतना इन्फ्लेशन आया कहाँ से? आपको किसने कहा कि जो है पैसा छापना इज़ द सोल्यूशन? जो पिछले 2 साल से आप छापे जा रहे हो, और क्या सोच के छापने लगे आप? क्यों? ताकि लोगों को घर में बंद करके रख सको। तो जब लोग, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, सारे थिंकर्स जो हैं, जब आपको बार बार आके ये कह रहे थे कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन, लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है वर्ल्ड के इतिहास में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जब ये ऐसा कहा जा रहा था तब आप कान में रुई डाल के बैठे हुए थे, और तब आपको प्रिंट करना सबसे बेहतरीन सोल्यूशन लगा। और आज के रेट में आपको अचानक से लगा कि नहीं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, इसको 2% के टारगेट में ही रखना है। हमको पता है कि इससे लोगों को तकलीफ़ होगी, लेकिन ये तकलीफ़ ज़रूरी है, लोगों को ये होना चाहिए, तभी जो है ये इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आएगा, प्राइस राइज रुकेगा फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए ये एक साइकिल है, इट्स अ विशियस साइकिल। पहले आप पैसा पंप करो मार्केट में, जिसका कि 90% पैसा जो है वो एलिट्स के पास चला जाता है, 10% जो है पैसा वो मार्केट में अदर यानी पब्लिक के पास पहुंचता है। फिर वापस जब आपको वहाँ से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के थ्रू आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर, टूल्स क्या है इनके पास, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, किसका? बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो स्टॉक में लगाने की जगह पे अभी बॉन्ड्स में लगाना स्टार्ट कर देते हैं और स्टॉक मार्केट धराशायी होने लगता है। इसका मतलब है कि बॉन्ड्स में ज़्यादा पैसा घुसने लगा, इंटरेस्ट रेट उन्होंने रेज किया तो, राइट। और साथ ही साथ अभी टाइटनिंग के केस में और क्या करते हैं, आपके होम लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, ये सब क्या होता है, हो जाते हैं महंगे हो जाते हैं। क्या होता है कि मार्केट में मैक्सिमम पब्लिक के हाथ से पैसा निकलने लगता है, धीरे धीरे पैसा निकलने लगता है, और ये पहुंचने लगता है कहाँ पर? इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ कलेक्शन।
बैक ऑफ अगेन दे आर ट्राइंग टू कलेक्ट इट बैक फ्रॉम द पब्लिक। लेकिन क्या आप कलेक्ट कर रहे हो? 90% तो आपने पहले ही एलिट्स के हाथ में थमा दिया था जब आपने पैसा डाला था। आप ये सोच के जब पैसा पंप करते हो मार्केट में, ये सोचते हो कि भाई बैंक्स जो है इसका ज़्यादातर मुनाफा जो है फ़ायदा जो है पब्लिक को पहुंचाएगी या पब्लिक के हाथ तक वो कैश पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, क्योंकि बैंक्स तो ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्च करते हैं वो खर्च करते हैं किधर, इन्वेस्ट करते हैं किधर? तो इन बड़े बड़े एलिट्स के प्रोग्राम्स में, बड़े बड़े कॉरपोरेट प्रोग्राम में, बड़े बड़े कंपनीज़ में, जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, इन सब जगहों पे आप क्या करते हो? बैंक्स क्या करती है? उन सब जगहों पे इन्वेस्ट करती है। फिर आपको क्या होता है कि भाई यहाँ पर पब्लिक से जब आप क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के थ्रू जो है आप जब पैसा इंटरेस्ट रेज करते हो, पैसा जब वापस निकलने लगता है, तो अल्टीमेटली गरीब कौन होता है? 10% खाली गया था पहले, और निकालने के टाइम पे आप 70-80% निकाल लेते हो पैसा मार्केट से। तो होता क्या है कि इससे जो 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 इनइक्वालिटी है, अमीर वर्सेस गरीब की जो इनइक्वालिटी है और भी बढ़ते चली जाती है। लोग लोन के कर्ज में और भी डूबते चले जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, अब आपको आगे सामने से दिखने वाला क्या है? सामने से ये दिखने वाला है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। आप देखोगे ले ऑफ्स चारों तरफ होने लगेंगे, कंपनीज जो है बजटिंग करने लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, लोन का ईएमआई लोग चुकाने में दिक्कत होगी, है ना। और फिर क्या होगा? फिर ये सारे एसेट्स जो है धीरे धीरे वो बैंक्स के हाथों में चले जाने लगेंगे। हो सकता है कि बैंक्स भी बैंकरप्ट हो जाए यदि लोग अपने डिपॉजिट्स निकालने लगे बैंक से ईएमआईज वगैरह चुकाने के लिए, तो बैंक्स भी बैंकरप्ट होने के चांसेस हैं। तो इसी को विशियस साइकिल कहा गया है इकोनॉमिक्स की भाषा में। इसी को विशियस साइकिल कहा गया है कि आप किसी न किसी लोगों के, कुछ न कुछ समूह हैं लोगों के, उनके दबाव में आप पहले पैसा डालते हो। 100 रुपया आपने डाला, 90 रुपया एलिट्स के हाथ पहुंचवा दिया, फिर 10 रुपया जो है पब्लिक के हाथ में पहुंचता है, और फिर बोलते हो कि 10 रुपये से मार्केट में प्राइस राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन है ज़्यादा। तो आप उसको टाइटन करने के लिए वापस जब पैसा खींचते हो तब पब्लिक से खींचते हो। एलिट से कम खींचता है और पब्लिक से ज़्यादा खींचता है। दैट इज़ हाउ द पैरिटी इन इनइक्वालिटी गेट्स क्रिएटेड, मोर एंड मोर। ये इट्स अ विशियस साइकिल। फिर से रिसेशन आएगा, रिसेशन को ठीक करने के लिए फिर आप पंप करोगे। तो ये साइकिल तो चलता रहेगा अनलेस अनटिल इट हैज़, आपका जो इकोनॉमी है आप रीसेट नहीं करते हो। तो जो इकोनॉमिक रीसेट की जो बात है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब सब कुछ लुटता हुआ नज़र आएगा, रियल एस्टेट मार्केट भी डाउन होते हुए नज़र आएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब लोगों के घर का स्वामित्व जो है वो बैंक के पास चला जाएगा। आज के डेट में हर एक फैमिली का जो सबसे बड़ा वेल्थ का हिस्सा होता है वो होता किस चीज़ का है? वो उनके रियल एस्टेट से रिलेटेड ही उनका वेल्थ का हिस्सा होता है, जो 70-80-90% कवर करता है। लेकिन यदि घटने लगे, वही यदि जीरो होने लगे, तो एक्चुअली में वो शिफ्ट हो रहा है। दैट्स अ वेल्थ विच इज शिफ्टिंग फ्रॉम योर हैंड टू समवन एल्सेस हैंड, टू बैंक्स हैंड्स और टू एलिट्स हैंड्स, टू रिचर्स हैंड्स। ये समझने की ज़रूरत है। खैर, फिर मिलते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।